गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों, कैसे हो? प्लस टू बच्चों, दिस इज माय 32nd फिजिक्स लेक्चर। प्लस टू बच्चों, अभी मैंने आपके साथ एक यूनिट ख़त्म किया है। द नेम ऑफ दैट यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या डिस्कस किया कि चार्ज इज स्टेशनरी। हमने व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट चार्ज को हमने, स्टैटिक चार्ज को हमने डिस्कस किया है। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू यूनिट। द नेम ऑफ दिस यूनिट इज इलेक्ट्रिक करंट and it is very clear from the name of the unit, electric current. Electric means charge, current means flowing. Okay, in this unit we will discuss when the charge is flowing. What happens? The charge flows. When the charge flows, current flows, electric current flows. That we will discuss. And when this electric current flows, what are its different effects? Heating effect, मैग्नेटिक इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ये सभी हम इफेक्ट डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट और करंट? कहते हैं टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स अगर सपोज कर लो कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में आपके पास कितना करंट फ्लो, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वहां पे एवरेज करंट जो फ्लो करेगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होगा। दिस इज द एवरेज वैल्यू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। नाउ व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट करंट? I, that will be limiting value of this average value in which delta t approaching to 0, delta q by delta t. This will be the instantaneous value of that electric current. I is equal to dq by dt. Now here we are saying that when electric current is flowing means charge is flowing. But what is the type of charge carrier here it is flowing? It depends upon the system where this current is flowing. Suppose this current is flowing in a metallic conductor, then type of charge carrier will be free electrons. If this electric current is flowing due to electrolysis, then the type of charge carrier will be ions. There are two types of ions, cations and anions. In that case the current will flow due to both positive and negative charge. If the current is flowing in a semiconductor, in that case also there are two types of charge carrier. One is free electrons and another is holes. So means the type of charge carrier depending upon the system where current is flowing. In metallic conductor it is flowing due to free electrons. In electrolysis it is due to cations and anions, and in semiconductor it is due to holes and free electrons. Clear? This electric current, oftenly this electric current is a scalar quantity. ये हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई हम डायरेक्शन नहीं लेते। इसलिए हम क्या करते हैं कि सेमीकंडक्टर में और इलेक्ट्रोलिसिस में करंट जो आपके पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। जो टोटल करंट लेते हैं उसमें टोटल करंट इज इक्वल टू द करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स as well as current due to holes. Or in electrolysis we are saying कि current is due to cations plus current due to anions ले लेते हैं। What's about units of this electric current? देखो चार्ज के यूनिट्स क्या हैं? कूलम है। टाइम के यूनिट्स क्या हैं? सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट्स क्या होंगे? कूलम पर सेकेंड। What is that? That is ampere. When 1 coulomb charge is flowing for 1 second, in that case we are saying कि 1 ampere current is flowing.
Now in case of metallic conductor, we are saying कि current is flowing due to free electrons. So here we are saying कि I is equal to क्या लेते हैं, NE/T ले लेते हैं. Means metallic conductor, the total charge Q will be equal to क्या होगा, N into E. What is here N? N is the number of free electrons. और इसे कैपिटल N ले लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में स्मॉल n को मोस्टली हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल कैपिटल N ले लें. I is equal to NE/T, where N is the number of free electrons flowing, E is the charge on each electron, T is the time. So if here simple सा क्वेश्चन है कि if 1 ampere current is flowing in a metallic conductor, तब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे. अगर मेटालिक कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, इन मेटालिक कंडक्टर इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फॉर ए टाइम 1 सेकेंड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू n इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19, t इज 1 सेकेंड, तो आपके पास दिस विल बी 6.25 इंटू 10⁻18 free electrons are flowing. In a metallic conductor, 1 ampere, when 1 ampere current is flowing, means that 6.25 into 10⁻18 electrons are flowing in that metallic conductor. Clear? Now, as I told you, electric current is a scalar quantity. Mostly, direction of the electric current is taken in the direction of the applied electric field. Means the direction of the electric current is taken as the direction of flow of positive charge. और direction of electric current conventional है, ये conventional, हम electric current की जो direction लेते हैं that is taken as conventional. Means conventional direction of the electric current is direction of the flow of positive charge. और conventional direction of the electric current is taken in the direction of electric field. और conventional direction of electric current is taken in the opposite direction of free electrons हम लेते हैं. मीन्स कि अगर सपोज कर लीजिए आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है, इस मेटालिक कंडक्टर में दिस इज ए मेटालिक कंडक्टर, हियर करंट इज फ्लोइंग एंड इन दिस मेटालिक कंडक्टर व्हाट वी आर डूइंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. तो मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट is taken always in the direction of electric field. That is the conventional direction. Clear? Just remember the current flowing per unit area, of cross section, that is called current density. Electric current is a scalar quantity, but current density is a vector quantity. Or I is equal to, can be written as I is equal to J vector dot S vector. What is here J? J is the current density. What is this current density? Electric current flowing per unit area cross section, per unit surface area. तो ये आपके पास क्या है, एरिया है, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है. As electric current is dot product of two vector quantity, it means that it is a dot product, so it is a scalar quantity. Clear? Now oftenly we have defined, देखिए आपके पास अगर सपोज कर लो कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण लीनियरली ट्रांसलेशनल मोशन में है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमने क्या लिख लिया, NE/T लिख लिया. अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है विद ए स्पीड v और रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ इज r, तब उसके कारण जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या होगा उस केस में, EV/2πr होगा. This is the current flowing due to an electron when it is revolving in a circular path of radius r with speed v. How this result comes? I क्या लिखा है मैंने, I is equal to charge upon time. What is here charge? Charge क्या यहाँ पे, Q क्या है, E. Time is time period ले लेंगे, time taken just to complete one revolution. वो टाइम क्या होगा, that is one revolution में distance traveled is 2πr, speed is v, तो क्या हो जाएगा, t क्या आ जाएगा, 2πr/v. तो इलेक्ट्रिक करंट flowing due to this when electron is revolving in a circular path
but it will be EV upon 2 pi R. Clear? So we have divided this electric current in major two parts. One is the direct current and second is the alternating current, means DC and AC. वो करंट which is not varying with time, टाइम के साथ जो कि वेरी नहीं कर रहा, उसकी डायरेक्शन भी नहीं वेरी कर रही, that current is called DC current. If the magnitude and direction of current does not vary with time, it is said to be direct current. जो आपके पास सेल से, डायनमो से, आपके पास बैटरी से जो करंट ऑब्टेन होता है, that is always a DC current. Clear? And second is the alternating current, the current which is varying periodically with time, current whose magnitude and direction varying periodically with time, that is called alternating current. Now in case of DC current, when the current is direct current, means which is not varying with magnitude and direction, उस केस में आपके पास अगर I और T का ग्राफ प्लॉट करते हैं, करंट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करोगे, तो यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. दिस इज फॉर डीसी करंट. मैंने क्या कहा, हाउ इट इज ऑब्टेन्ड? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल, बैटरी और डायनमो से क्या है, आपके पास डीसी करंट ऑब्टेन होगा. व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? दिस इज द ग्राफ फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट. This is means this current is varying periodically with time. Its magnitude and direction is varying periodically with time. So this is the graph for alternating current, और जिसे simple हम AC कॉल कर देते हैं. And remember, हम AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, DC को आप AC में कन्वर्ट कर सकते हो. अगर आपको AC को DC में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास जितने भी ये आपके पास जो चार्जर लगे होते हैं, ये जितने भी चार्जर हैं आपके पास, मोबाइल के जो चार्जर हैं, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको डीसी चाहिए होती है. मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए यू रिक्वायर्ड डीसी. लेकिन आप जहां पे भी अपना प्लग लगाओगे, कहीं भी घर पे अपना प्लग लगाओगे, वहां से आपके पास मिल क्या रही होगी, एसी. तो आपके पास जो चार्जर होगा, चार्जर्स के अंदर पहले एक आपके पास क्या लगा होगा, रेक्टिफायर लगा होगा. वो रेक्टिफायर पहले आपकी जो एसी सप्लाई है उसको क्या करेगी, वो डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगी. तो फिर उस जो डीसी आएगी उससे आपके पास बैटरी जो है आपकी चार्ज होगी, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी चाहिए. अब बैटरी को चार्ज करने के लिए जो डीसी भी चाहिए वो कम वोल्टेज की चाहिए. तो दो चीजें आपके पास बैटरी के अंदर, चार्जर्स के अंदर लगी होती है. एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, एक रेक्टिफायर लगा होता है. ट्रांसफार्मर पहले आपको जितनी वोल्ट की डीसी चाहिए, पहले एसी को उतने वोल्ट स्टेप डाउन करके उतने वोल्ट एसी में कन्वर्ट करते हैं. फिर उस रेक्टिफायर के साथ आपके पास दैट एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी. तो मींस एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय व्हाट डिवाइस, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर. इसको हम पढ़ेंगे भी, लास्ट चैप्टर है हमारे पास सिलेबस का सेमीकंडक्टर, वहां पे पढ़ेंगे कि व्हाट इज दिस रेक्टिफायर. और अगर आपने डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या है, इन्वर्टर है. व्हाट इज दैट? इन्वर्टर. इन्वर्टर से हम क्या करते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं. आपके घरों में कहते हैं कि जब लाइट चली जाती है तो आपका इन्वर्टर काम करता है. तो इन्वर्टर नहीं है, एक्चुअली काम इन्वर्टर नहीं करता. काम क्या करती है, आपकी बैटरी करती है. सप्लाई जो करंट देता है वो कौन देती है, जो नीचे आपके पास बैटरी लगी होती है. लेकिन वो बैटरी ने क्या देनी है, आपको डीसी देनी है. लेकिन आपके हाउसेज में जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं उन्होंने कैसे रन करना है, दे विल बी रन विद ओनली विद एसी. एसी के साथ वो चलेंगे. तो इसलिए आपके पास जो बैटरी से डीसी आ रही है, पहले उस डीसी को हम एसी में कन्वर्ट करते हैं. जो किसे कन्वर्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर. तो आपके पास फिर जाकर हम अपने हाउस होल्ड अप्लायंसेस को वो सप्लाई देते हैं. दैट होल इज कॉल्ड इन्वर्टर. एक्चुअली क्या है, आपने कभी अपने हाउसेज में देखा होगा, दो चीजें होती हैं इन्वर्टर के पास. एक नीचे बैटरी लगी होती है और ऊपर एक डब्बा सा पड़ा होता है. एक वो जो डब्बा पड़ा होता है वो एक्चुअली क्या होता है, इन्वर्टर होता है. और नीचे जो पोर्शन है वो बैटरी तो आपको दिखाई दे जाती है. तो बैटरी की पहले वो डीसी उस इन्वर्टर के साथ
AC में कन्वर्ट होती है और फिर उसकी जो आउटपुट है आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेस को दी जाती है, देन होल इज कॉल्ड इन्वर्टर। क्लियर? सो AC is converted into DC with the help of rectifier, DC is converted into AC with the help of this inverter. Clear? Now अब हमारे पास इस चैप्टर में जो है हम जो मोस्टली डिस्कस करेंगे वो DC के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो लेंगे हम DC ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है, एक पूरा चैप्टर है, उसमें हम सिंपल डायरेक्ट करंट को ही हम पढ़ेंगे। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कहीं पे भी चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए आपके पास सपोज कर लीजिए कोई मेटेलिक कंडक्टर है। मेटेलिक कंडक्टर के पास देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास उनकी थर्मल वेलोसिटी जो होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकंड की उनकी थर्मल वेलोसिटी होती है एट ए रूम टेम्परेचर, और वो इतनी लार्ज वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन अगर हम उस मेटालिक कंडक्टर को टच करते हैं तो आपको ये नहीं फील होता कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रहा है। एक्चुअली क्या है, नो करंट इज फ्लोइंग इन दैट मेटालिक कंडक्टर। कोई उस मेटालिक कंडक्टर में करंट नहीं फ्लो कर रहा होता। No doubt कि there are large number of free electrons which are having a large thermal velocity that is of the order of 10⁵ or 6 meter per second, but after that no current is flowing. Reason behind this कि आपके पास जितने उसमें आपके पास जो थर्मल इलेक्ट्रॉन हैं, जितने वहाँ से वो एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उतने ही वहाँ से वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो जिसके कारण वी कैन से उनका जो नेट मोशन होता है जीरो होता है। नेट उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, नेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो। सो नो करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू दिस थर्मल वेलोसिटी ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। बट कब आपके पास इस मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लो करता है? कब फ्लो करता है? जब हम उस मेटालिक कंडक्टर के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तब जाकर उसमें करंट फ्लो करता है। क्या होता है कि जब आप उस मेटालिक कंडक्टर में आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, व्हाट हैपेंस, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक नेट मोशन वहां पे क्रिएट हो जाता है, और मीन्स वो एक नेट एवरेज वेलोसिटी वहां पे वो अटेन कर लेते हैं। वो नेट एवरेज वेलोसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अटेन कर लेते हैं। वो जो नेट एवरेज वेलोसिटी वो अटेन करते हैं वो कौन सी डायरेक्शन होती है? दैट इज इन दी अपोजिट डायरेक्शन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो उस नेट एवरेज वेलोसिटी के कारण वहां पे करंट फ्लो करते हैं, और वो जो नेट एवरेज वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अटेन करते हैं उस नेट एवरेज फ्री इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है दैट इज फ्लोइंग ओनली ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही हमारे पास करंट फ्लो करता है। सपोज ये आपके पास एक कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर हुज लेंथ इज L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर का क्या है? A है। इस कंडक्टर के क्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इस डायरेक्शन में। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस दिस कंडक्टर इन दिस डायरेक्शन। What happens before applying the electric field? इसके जो जितने भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे they are in random motion, और उस रैंडम मोशन के कारण उनकी नेट एवरेज वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी। नो डाउट कि अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी ये नहीं होगा कि जितने भी सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं होंगे कि आपके पास अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना शुरू कर देंगे। अभी भी क्या होगा, वो क्या है कि जब वो ड्रिफ्ट होंगे, ड्रिफ्ट होने के बाद भी क्या है, दे आर आल्सो कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड आल्सो विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। बट इन दिस केस डेफिनेटली वो अपना मोशन उनका कहां से स्टार्ट हुआ? नेगेटिव पोटेंशियल से स्टार्ट हुआ। दे आर रीचिंग टुवर्ड द पॉजिटिव पोटेंशियल। डेफिनेटली दे विल रीच एट द पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल तक, पॉजिटिव टर्मिनल तक वो पहुंच जाएंगे। अगर वो नेगेटिव से शुरू होकर अपना मोशन पॉजिटिव तक पहुंच रहे हैं, बीच में चाहे उनका मोशन किसी भी तरह रहा हो, लेकिन उस केस में हम कहेंगे कि इट मींस दैट दे हैव ऑब्टेन ए नेट मोशन। और वो जो नेट एवरेज वेलोसिटी उन्होंने ऑब्टेन की है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दैट नेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो मींस अगर आपसे
डिफाइन करना चाहिए व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यू कैन से कि इट इज द एवरेज एडिशनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? नाउ हियर वी वांट टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाहेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे ड्राइव करेंगे? सपोज कर लेते हैं ये आपके पास कंडक्टर है, दिस कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? कैपिटल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है u1, u2, u3 डैश डैश un है। दिस इज द velocity of this capital N number of free electrons before the application of electric field. Electric field अप्लाई करने से पहले इनके पास ये velocities हैं, और जैसे मैंने कहा before the application of this electric field इनकी जो net average velocity है u1 vector plus u2 vector plus u3 vector plus dash dash plus un vector whole divided by n, ये हमारे पास क्या है? 0 है। The net average velocity of this free electron is equal to 0. अब जब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी? v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर डैश डैश vn वेक्टर। Let their velocities become v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर डैश डैश vn वेक्टर after the applying the electric field. Now what will be here? v1 vector will be equal to here u1 vector plus a vector into t1, और v2 vector क्या होगा? that will be equal to u2 vector plus a vector into t2 and so on। vn vector क्या होगा? आपके पास un vector plus a vector into tn। clear? now why I am टेकिंग एक्सेलरेशन जो है वो सबकी क्या ली जा रही है? सेम ली जा रही है। क्यों एक्सेलरेशन क्यों सबकी सेम ली जा रही है? एक्सेलरेशन क्या होगी? दैट इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर अपॉन मास। अब फोर्स क्या होगी? फोर्स किसके कारण एक्ट करनी है? इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्ट करनी है, और वो फोर्स क्या होगी? माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई वेक्टर, दिस इज डिवाइड बाय एन। दिस विल बी द एक्सेलरेशन वेक्टर। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए नेगेटिव साइन? कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे दे विल बी एक्सेलरेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई की है तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्सेलरेशन होगी वो किधर होगी? वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। अब हर एक इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, चार्ज सेम है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड विद द सेम अमाउंट। अब ये जितनी भी इक्वेशन आई है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन सभी इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर डैश डैश vn वेक्टर। ये हमने इनकी क्या कर दी? लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी। फिर उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड भी ऐड कर देते हैं, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस un वेक्टर प्लस क्या होगा? a वेक्टर into t1 plus t2 plus dash dash plus tn। ठीक हो गया? तो हमने ये जितनी भी इक्वेशन आई थी इन सभी इक्वेशंस को इनकी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड कर दी, राइट हैंड साइड भी ऐड कर दी। अब क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को दोनों तरफ कैपिटल M से डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज हियर कैपिटल M? कैपिटल M इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नाउ जी हमने पहले कह दिया कि इनिशियल जो इनकी एवरेज वेलोसिटी है ऑफ ऑल दीज फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास क्या है? 0 है। ये क्या है? 0 है। क्लियर? और जो आपने पास इन्होंने एडिशनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अटेन की है, इसको मैंने क्या कहा है? दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये क्या है आपके पास? vd वेक्टर है। दिस इज द एडिशनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज हियर दिस टर्म? This term is here known as relaxation time. tau के साथ डिनोट करते हैं इसे। This is denoted by tau and this is called relaxation time. What is this relaxation time? क्या कहते हैं? It is the average time elapsed during its last two successive collision. कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे तो मैंने आपको क्या
एक्सेलरेट होने के बाद भी ये सीधे नहीं मूव करेंगे, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, उसके बाद भी इनका क्या है, रैंडम मोशन है। लेकिन रैंडम मोशन में भी क्या है, लास्ट में जब इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुंचना है, पॉजिटिव टर्मिनल में पहुंचने से पहले इनकी लास्ट जो 2 सक्सेसिव कोलिजन में जो सबके टाइम होंगे वो डिफरेंट होंगे, और उन टाइम्स की जो एवरेज होगी दैट इज कॉल्ड इट्स रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन वर्ड कहाँ से आया है, कभी आपने देखा होगा एथलीट को रनिंग के टाइम जब वो अपने टारगेट के ऊपर पहुंचता है, टारगेट पे जस्ट उसको पता चल गया दिस इज माय टारगेट, तो टारगेट से पहुंचने से पहले वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो मींस इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन का भी क्या टारगेट है, इसने पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर पहुंचना है, पॉजिटिव टर्मिनल से पहुंचने से पहले इसके जो लास्ट 2 कोलिजन होंगे उसमें वो रिलैक्स हो जाएगा, और उस रिलैक्स होने में जो उसको टाइम लगेगा दैट टाइम इज हियर कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स नाउ, ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी हियर, जस्ट रिमेंबर कि आपके पास ये vd वेक्टर ये 0 आ गया, ये a वेक्टर इनटू t आ गया, तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू a वेक्टर इनटू tau। तो a वेक्टर को मैंने पहले ही लिखा है, क्या है, माइनस स्मॉल e कैपिटल E वेक्टर tau upon m। So this is the expression for the drift velocity of these free electrons. From here it is where first thing is कि आपके पास what is the significance of a negative sign? A negative sign signifies that electrons are drifted in the opposite direction of the applied electric field. हम यहाँ पे E को क्या लिख सकते हैं, हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें, Vd क्या आ जाएगा, that is E कैपिटल E tau upon m, और E को क्या लिख सकते हैं हम, E कैन बी रिटन एज V बाय L, तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, E V tau अपॉन ml, ये आपके पास क्या आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। व्हाट इज V? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, tau इज द रिलैक्सेशन टाइम, L is the length of this conductor, m is the mass of free electron, and it is very clear that here drift velocity of these free electrons is depending upon potential difference and length of the conductor। अगर आप इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर इस कंडक्टर की आप लेंथ इंक्रीज करते हो तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, और आप अगर इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करते हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन on the drift velocity of the free electron. Drift velocity of the free electrons is independent of the area of cross section of the conductor. Clear? So this is the expression for drift velocity. Now from this expression यहीं से हम क्या derive कर सकते हैं, we can derive the relation between current and drift velocity. Current और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हम रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? सपोज कर लेते हैं यही हम कंडक्टर यूज कर लेते हैं, दिस इज ए कंडक्टर जिसमें सपोज कर लेते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। दिस कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल N इसके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो हम वैसे ड्राइव क्या करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो क्या किया हमने, क्या कह रहे हैं, व्हाट आई एम सेइंग कि सपोज आई एम कंसीडरिंग कि दिस कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ कैपिटल है स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू दिस स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, करंट किसके बराबर है, I इज इक्वल टू क्या है, Q बाय T है। व्हाट इज योर I इज Q इनटू T। Q क्या होता है आपके पास, N इनटू E। क्लियर? Q क्या है यहाँ पे, N इनटू T। व्हाट इज योर N? N इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर है। क्लियर? नंबर अब दिया क्या हुआ है इसने, स्मॉल n दिया हुआ है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसलिए आपके पास
कैपिटल एन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी स्मॉल एन ए इंटू एल। मीन स्मॉल एन क्या है, चार्ज कैरियर डेंसिटी है, एल क्या हो गया, वॉल्यूम आ गया, स्मॉल एन इंटू एल क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। तो आई क्या बन जाएगा, एन ए एल बाई टी। टी क्या होगा, अब कितना टाइम लगेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां तक पहुंचने में, एज दे आर ड्रिफ्टेड विद स्पीड ऑफ वी डी। तो आपके पास जो टाइम लगेगा वो क्या, टी की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, एल बाई दैट विल बी क्या आ जाएगा, एल बाई वी डी। एल एल कैंसल आउट हो जाएगा, ई भी है यहाँ पे, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एन ई ए वी डी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। क्या कर लिया, I इज इक्वल टू क्या है आपके पास, Q बाई टी है, Q क्या लिख लिया, N इंटू ई बाई टी लिख लिया, N क्या टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, कैपिटल N क्या लिख लिया आपके पास, N ए इंटू कैपिटल L लिख लिया, वॉल्यूम इंटू चार्ज कैरियर डेंसिटी को, चार्ज कैरियर डेंसिटी के मल्टीप्लाई कर दिया, वो N आ गया। बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, T की वैल्यू क्या ले ली, L बाई वी डी ले ली। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ current in terms of drift velocity. This is very important result बच्चों। current relation between current and drift velocity is NEAVD। और यहाँ पे जो important बात है, जो small n है, that is the number of charge carrier per unit volume है। और यहीं से अगर आप current density निकालोगे, current density क्या आ जाएगी आपके पास, that will be NEVD आ जाएगी। Here current density will be NEVD। NEVD क्या होगी आपके पास, current density होगी। क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो अब यहीं से आपके पास हम बड़ा एक इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉ है, जो कि सारा कुछ हमारे पास जिस लॉ के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लॉ इज, दैट इज ओम्स लॉ। दिस इज ओम्स लॉ। क्या स्टेट करता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है कि आपके पास व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस ओम्स लॉ, कहता है अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशन, सिमिलर फिजिकल कंडीशन मीन्स प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, वो क्या है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मीन्स इस कंडक्टर के क्रॉस जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मीन्स V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, और V इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास I इंटू R होगा। Here V is equal to क्या होगा, I into R, where I is the current flowing through this conductor, R is the constant of proportionality, this is known as resistance of this conductor। अब देखिए मैंने पहले ही कह दिया कि आपने जब इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, उसके बावजूद भी क्या है, इस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो रैंडम मोशन है। उसके बाद ये नहीं है कि वो पूरे एक स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी रेजिस्टेंस दे आर फ्लोइंग, मींस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद भी क्या है, उनमें एक आपस में भी कोलिजन है एंड आल्सो दे आर कोलाइडिंग विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर, जिसके कारण अभी भी वहां पे एक उनके फ्लो में रेजिस्टेंस है। लेकिन डिफरेंस ये है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि दे आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये इसमें एक खासियत है। पहले अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते तो उनका कोई टारगेट नहीं है, पता नहीं उन्होंने कहाँ जाना है, किधर से किधर जाना है, और ऑन द होल क्या लेते हैं कि उनका लेफ्ट टू राइट का मोशन में और राइट टू लेफ्ट के मोशन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल है, और टोटल करंट अगर हम उनका करंट भी लेते हैं, वो करंट इक्वल है, तो नेट करंट हम वहाँ पे क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या है, एक नेट करंट फ्लो करता है। लेकिन उस केस में भी आपके पास वो रेजिस्टेंस है, दैट इज हियर डिनोटेड बाय कैपिटल R। कैपिटल R इज हियर कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दिस
कंडक्टर, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है। और मैंने बता दिया कि ये रेजिस्टेंस किसके कारण है। दिस रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद इटसेल्फ एंड आल्सो विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। दो तरह के हम रेजिस्टर लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टर। कौन कौन से दो तरह के रेजिस्टर लेते हैं हम? एक ओमिक रेजिस्टर लेते हैं और दूसरे नॉन ओमिक रेजिस्टर लेते हैं। कौन कौन से दो रेजिस्टर लेते हैं? एक ओमिक और दूसरे हम क्या लेते हैं? नॉन ओमिक रेजिस्टर लेते हैं। वो रेजिस्टर जिसमें ओम्स लॉ वैलिड हो, वो रेजिस्टर जिसमें कौन सा लॉ वैलिड हो? ओम्स लॉ वैलिड हो, उन रेजिस्टर को हम क्या कहते हैं? ओमिक रेजिस्टर कहते हैं। मींस ओम्स लॉ वैलिड का मतलब कि जिसके लिए अगर हम V और I का ग्राफ प्लॉट करें, V और I का ग्राफ प्लॉट करें और we are getting a inclined straight line, means slope of that graph is constant and that constant slope give the value of the resistance of that resistor. Those resistors are known as ohmic resistor. And what are the non-ohmic resistors? Those resistors in which if we are plotting the graph between V and I, that is not a straight line. Slope of that graph is not constant. उस ग्राफ की जो स्लोप है वो भी constant नहीं है. Slope of that graph is not constant and आपके पास V और I का ग्राफ भी आपके पास means in that case जैसे जैसे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट वेरी करेगा, कॉरस्पॉन्डिंगली रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर भी आपके पास वेरी करेगी. उन रेजिस्टर को हमने क्या कॉल किया है? नॉन ओमिक रेजिस्टर कॉल किया है. बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल है हमारे सिलेबस में नॉन ओमिक रेजिस्टर की. फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास नॉन ओमिक रेजिस्टर की, डायोड जो है नॉन ओमिक रेजिस्टर है, और भी आपके पास सेमीकंडक्टर जो है आपके पास क्या है? नॉन ओमिक रेजिस्टर्स हैं. क्लियर? तो अभी फिलहाल हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में हम सिर्फ अभी ओमिक रेजिस्टर ही डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो आपके पास यहां से क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड ओमिक इक्वेशन. बट बच्चे देखिए मैंने आपको क्या कहा है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, वन इज द ओमिक, अनदर इज द नॉन ओमिक रेजिस्टर. लेकिन जो इक्वेशन है आपके पास V is equal to IR, दिस होल्ड्स गुड फॉर ओमिक एज वेल एज नॉन ओमिक रेजिस्टर. दोनों के लिए ही ये इक्वेशन क्या करती है? वैलिड रहती है. इस चीज को आपने याद रखना है. सो थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर टुडे. बच्चों जैसे आपको पता है ये सारी की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, PM केयर फंड को समर्पित हैं. सो बच्चों आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है और जागृत रहना है, और इससे कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है. तो इसके लिए हम एक छोटा सा शांति पाठ भी करेंगे. ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि. ओम शांति शांति शांति.